Assalamu alaikum students. Insha. Okay, students, today our topic is equations. We will do equations. Equation. Here we will do the simple equations, the linear equations. Linear equation, I told you, the equation which have the power 1, they are called the linear equations. Where the variables power 1, they are called the linear equations. So we will do the linear equations, the simple equations. Exercise 1.2, page number 13. Exercise 1.2, page number 13. Linear equations. Exercise 1.2, exercise 1.2, page number 13. Solve the following equations. Remember that equations may have no solution or infinitely many solutions. So it is not necessary the equation has only one solution. Sometimes it may have infinitely solutions and sometimes they have no solutions. So it is not necessary every time you will get some solutions. Sometimes you will not get any solution. Sometimes there will be infinite solutions. Okay. So we are doing question number 1 of the exercise 1.2. Question number 1. Two x plus 3x plus 5 into 2x minus 3 into 2x minus 3.
is equal to 30. So first of all, we will open the bracket. We will simplify the bracket inside. Then we open the bracket. So simplify the bracket 2x minus 3. It cannot be simplified further. This is the simplified form. So it means we have to open it. We will open it. 2x plus 3x. 5 is being multiplied with 2x. It will become 10x. Plus minus minus. 5 into 3 will be 15. Is equal to 30. Now we had opened the bracket. Now we will simplify this one. 2x plus 3x will be 5x. 5x plus 10x will be 15x. Minus 15 will be shifted on the other side. 30 plus 15. 30 plus 15. So 15x is equal to 45. Now we have to find the value of x. So it is 15x. So 15 is being multiplied with x when it will shifted on the other side of the equation. It is multiplication, there will be division. So 15 will divide 45x. So x will become 45 divided by 15. 15 ones are 15, 15 threes are 45. X is equal to 3 is the answer. This is the answer. X is equal to 3. This is the answer. Okay. Asla. Asla. Okay. So 15x is equal to 3 is the answer. So understood? If there is brackets, first of all, we will simplify the bracket. If it is already simplified, then we'll open the bracket. If it is not simplified, first we will simplify it, then we will open. In the second step, we will open. But here the x 2x minus 3 cannot be further simplified. 2x minus 3 cannot be further simplified. So we will just open it. 2x plus 3x. Now 5 into 2x will be 10x. 5 into 3 will be 15. Now 2x plus 3x plus 10x will be 15x. Minus 15 will be shifted on the other side. So 30 was already there. When minus 15 is shifted on the other side of the equation, it will become plus 15. So 15x will become 45. 30 plus 15 will be 45. X will be equal to 45 divided by 15. Because 15 is being multiplied over there. So when it will go on the other side, it will divide the number which is on the other side. So 15 will divide 45. Just like minus 15, it is minus 15, it will go on the other side, it will become plus 15. So it is 15 into x, so it will go on the other side, 45 divided by 15. So answer is 3. 15 ones are 15, 15 threes are 45. Or first you divide by 3, then you divide by 5. So this is the answer. That was question number 1. Now we will do question number 2.
Question number 2. Four x square plus 7x minus 2x into 2x minus 5 is equal to 70. Is equal to 70. So first there is bracket, so we will try to simplify the bracket, but 2x minus 5 cannot be further simplified, so it will remain as it is. So we will open it. The next step is to open it. So we'll open the bracket. 4x square plus 7x minus 2x into 2x will be minus 4x square. 2 into 2 will be 4, x into x will be x square. Then minus into minus will be plus. 2 into 5 will be 10 into x is equal to 70. Now we'll simplify. First we'll simplify the x square. 4x square and minus 4x square, 0. 4x square minus 4x square, we are subtracting, the answer will be 0. Now 7x plus 10x will be 17x is equal to 17. Divide by 17. So x will become 17 divided by 17. This 17 will go on the other side. 17 ones are 17. So x is equal to 1 is the answer. X is equal to 1 is the answer. That was question number 2. Now we will do question number 3. We will do question number 3. X minus 2 into x plus 4 is equal to 0. Is equal to 0. These are the two factors. The two brackets are being multiplied with each other on the left side. On the left side, there are two factors only. This bracket is one factor, this bracket is the other factor. The two brackets are being multiplied, the two factors are being multiplied, and on the right side is 0. So when the two factors are being multiplied and the answer is 0, it means each one is equal to 0. Any one of these two will be equal to 0. So when the two factors, when the two numbers or the two factors are being multiplied and the answer is 0, it means any one of the two factors must be equal to 0. Otherwise, we will never get 0. We will get 0 when one of the two numbers are multiplied, one of the two numbers is 0. Any one of them is 0, so we will get 0. Otherwise, we will never get 0. Pizza or so we will never get 0 if on the right side is 0, on the left side are the factors. There may be two factors, there may be three factors, there may be four factors, whatever be the number, they must be factors. If more than one factors are being multiplied and you are getting 0, it means each of
the factor is equal to 0. So first of all, we will take x minus 2 equal to 0, then we'll take x plus 4 equal to 0. This is only for when there is 0 on the right side. There are factors on the left side, and the right side is 0. Then we can say that any one of them is equal to 0. We will take each of them equal to 0. If there is not 0, it is not 0. It should be, it may be 1, it may be 2, it may be 3, it may be 4. Then we can't put x minus 2 equal to 1 or x minus 2 equal to 2, etc. No. This condition is applied only when there is 0. जब हमारे पास राइट साइड पे 0 होगा और लेफ्ट साइड पे कुछ ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम ये सपोज करेंगे कि ईच ऑफ देम इज इक्वल टू 0. हर ब्रैकेट उसमें से इक्वल टू 0 करके हम उसको सॉल्व करेंगे. और ये उसी सूरत में है जब राइट साइड पे 0 होगा, ये याद रखिए, और लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, बीच में कोई +3 +5 कुछ नहीं होगा. ब्रैकेट्स ही मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ब्रैकेट्स के बाहर कुछ नहीं होगा, या ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस प्लस का साइन नहीं होगा किसी दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होंगी ब्रैकेट्स की, और राइट साइड पे 0 होगा. तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे. हम सपोज करेंगे कि इसमें से हर एक जो है वो 0 के इक्वल है. तो लेट अस टेक x minus 2 equal to 0. Either x minus 2 equal to 0. तो x क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 उस तरफ जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. इसी तरह हम सेकंड को लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू, और x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और प्लस 4 उस तरफ जाएगा, -4. 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4. तो ये हमारे पास दो आंसर हो गए, 2 और 4. और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी सूरत में होगा जब हमारे पास राइट साइड पे 0 होगा, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ 2 हो या 1 हो या 1/2 हो, तो हम यूं नहीं लिख सकते x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 या 1/2, जो भी यहाँ है उसको इक्वल नहीं. ये कंडीशन उसी सूरत में अप्लाई करेंगे जब राइट साइड पे 0 होगा और लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी. मल्टीप्लिकेशन के अलावा ब्रैकेट्स के दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होगा, ना ही ब्रैकेट के बाहर कोई प्लस माइनस का साइन होगा. सिर्फ ब्रैकेट जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी. तो हम ये कंडीशन यूज, तो दो कंडीशन हो गई. राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स होंगी मोर देन 1, और जितनी भी ब्रैकेट्स हो वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, वो आपस में प्लस या माइनस नहीं हो रही होंगी, और राइट साइड पे 0 होगा. ये दो कंडीशन होंगी. तो हम ये हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखकर सॉल्व करेंगे. हर ब्रैकेट को, ये 2 हो या 4 हो या 10 हो या 20 हो, जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी हर एक को इक्वल टू 0 रखिए, क्योंकि 0 आंसर मल्टीप्लिकेशन में उसी वक्त हो रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जो दो ब्रैकेट्स या दो से ज्यादा ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दें, तो उसी सूरत में 0 होता है जब उनमें से कोई एक 0 हो. उनमें से कोई एक 0 हो. वो कौन से 0 है हमें तो नहीं मालूम, तो हम हर एक को इक्वल टू 0 सपोज कर ले, हर एक को इक्वल टू 0 सपोज कर ले. तो याद रखिए ये उसी सूरत में अप्लाई होगा जब राइट साइड पे हमारे इक्वल टू 0 हो और लेफ्ट साइड में ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, नंबर्स ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो इक्वल टू 0 हो सकता है, वरना नहीं. यहाँ बीच में, यहाँ मैं +5 कर दूं या यूं कर दूं, ये हमारे पास दो तो हैं, और यहाँ +3 आ जाए और इक्वल टू 0 हो, तो इस सूरत में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते ये फार्मूला, क्योंकि बीच में प्लस है, फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ ये दो फैक्टर्स है, लेकिन उसमें 3 भी ऐड हो रहा है. तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि हर एक को 0 इक्वल कर ले. इसी तरह अगर यहाँ इक्वल टू 4 है, तो भी हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि x माइनस 2 इक्वल टू 4 या x प्लस 4 इक्वल टू 4 या x माइनस 2 इक्वल टू 2 कर दे, 2 इंटू 2 कर दे, एक को 2 रख दे और एक दूसरे को भी 2 रख दे. नहीं, तो ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकते. ये सिर्फ अप्लाई होते हैं जब इक्वल टू 0 होगा. ये याद रखना है आप. मोहम्मद मुइज खान.
So now we will do another question. तो आप समझ गए होंगे कि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हर एक इक्वल 0 रखते हैं अगर वो इक्वल टू 0 हो। अच्छा, इसी तरह एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, मुस्तफा, ये भाई कोई मुस्तफा को इन्फॉर्म कर दो कि ये वेटिंग रूम में 2 मुस्तफा मौजूद हैं। चलें, ये खुद ही लॉग आउट हो गया। और ओके, क्वेश्चन नंबर 5। x minus 2 into x plus 4 is equal to -8। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम वो पिछले क्वेश्चन वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते कि हर एक को इक्वल टू -8 रख ले, नहीं। वो उसी सूरत में होता है जब वो इक्वल टू 0 हो। वो एक ही कंडीशन है हमारे पास, इक्वल टू 0 हो और इस तरफ फैक्टर्स हो, तो हम हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख सकते हैं। लेकिन जब वो 0 नहीं है, इट इज -8, सो वी हैव टू डू, we will have to open it, we have to open it, we will open it। x into x will be x square,
x into plus 4 will be plus 4x. So first we multiply x with all these two terms. Now we'll multiply by 2 minus 2. Minus 2 into x will be minus 2x. Minus 2 into 4 will be minus 8. Equal to minus 8. This minus 8. Simplify this one. X square plus 4x minus 2x will be plus 2x. Plus 4x minus 2x will be plus 2x. And minus 8 plus 8 will come over there, equal to 0. This minus 8 is shifted over there, minus plus 8. And this will become 0. Okay. Now, सर इन क्वेश्चंस का क्वेश्चन क्या था? ये है ना x minus 2 x plus 4 equal to minus 8. सर मतलब पहले वाले में हमें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना था, तो इसमें इसका क्वेश्चन मैंने इक्वेशंस देखा है, नहीं। इक्वेशंस है ये इक्वेशंस है। ठीक है सर। सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x minus 8 plus 8 will be 0, equal to 0. Okay. So x square plus 2x equal to 0. We will make the factors. So x is common. X is common. Inside will be x plus 2 equal to 0. When x is common, x square and x, in both the terms x is present. In both the terms x is present. So x will be outside. Now x square will be divided by x. The answer is x. 2x is divided by x. The answer is 2. Equal to 0. Now there are two factors. Again, the condition of the third question will come over there. There are two factors. One, x is being multiplied with x plus 2. So there are two factors, e and equal to 0. So each one will be taken equal to 0. So first will the first factor x, let x equal to 0. So आंसर यही है x equal to 0. तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आंसर आ गया दूसरा, और x plus 2 equal to 0. तो इसमें से x equal to 0 पहले है और प्लस 2 को उस तरफ ले गए माइनस 2. तो 0 minus 2, x is equal to minus 2. 0 minus 2 will be minus 2. तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, 0 और minus 2. So answers are x is equal to 0 and minus 2. ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास, ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए, 0 और minus 2. तो इसमें आपने देखा कि ये x इक्वल x minus 2 x plus 4 इक्वल टू -8 था, 0 नहीं था. इससे पहला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें इक्वल टू 0 था.
तो हर एक को हमने इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल दी थी। ये चूंकि -8 या 0 नहीं है इस तरफ, तो है इस तरफ तो दोनों फैक्टर्स ही हैं। ये कंडीशन तो पूरा कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे 2 फैक्टर्स हैं, कोई बीच में प्लस माइनस नहीं हो रहा, लेकिन राइट साइड पे 0 नहीं है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इनको ओपन करेंगे पहले ब्रैकेट्स को, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर -2 को x से किया -2x, फिर -2 को 4 से किया -8 और इक्वल टू -8। अब ये -8 को इस तरफ ले आएंगे, +8 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x और -2x के x स्क्वायर कोई और नहीं है, इसलिए ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, x स्क्वायर ही रहा। 4x और -2x, ये 2x बच जाएगा, और -8 और +8 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, ये x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये थर्ड क्वेश्चन वाली कंडीशन आ गई, एक तरफ सिर्फ x है, x और x प्लस 2 दो फैक्टर्स हैं, और दूसरी तरफ 0 है। तो ये थर्ड क्वेश्चन वाली कंडीशन आ गई, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले हम एक फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे, इस फैक्टर को x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, x इक्वल टू 0। दूसरा फिर इसको x प्लस 2 को 0 लेंगे, तो 2 प्लस 2 को उस तरफ ले जाएंगे 0 -2, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो दो आंसर आ गए, 0 और -2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा। सर जी बेटा, सर इसके 2 ही आंसर आएँगे। जी जैसे 2 अगर हम होंगे, ऐसा एक कर बार है ना। दें कि x यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ 0 से डिवाइड करें तो ये तो खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करें नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना बेटा। स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें 2 आंसर, क्यूब वाले होंगे 3 आंसर, पावर 4 वाले होंगे 4 आंसर। जो जितनी भी पावर हो इसमें क्वेश्चन में, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 आया था, तो पावर 2 आई थी हमारे पास, तो पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 आंसर मिलने चाहिए, हमारे आने चाहिए। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों आंसर एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन होने 2 आंसर चाहिए। क्यूब है तो उसमें 3 आंसर्स होने चाहिए, पावर 4 है तो उसमें 4 आंसर्स होने चाहिए। जितनी भी पावर हो x की, वो उतने ही आंसर उसमें देता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें देखिए हमारे पास राइट पे जो है 0 है, और लेफ्ट पे हमारे पास 3 फैक्टर्स है, एक ये 4x है, एक x माइनस 2, एक x माइनस 2, 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो हम जो है इसका पहले एक फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे, फिर दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे, फिर तीसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे। तो लेट 4x इक्वल टू 0, so x विल बी इक्वल टू 0 अपॉन ये 4 उस तरफ जाएगा, अपॉन हो जाएगा, या मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइजर हो जाएगा। तो 0 अपॉन 4, आंसर इज 0। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, ये नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, इसका आंसर 0 ही होगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 होता है बेटा, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो गलत होता है। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 0 को डिवाइड किया जा सकता है, बट वी कांट डिवाइड बाय 0। वी कैन डिवाइड 0 by any number, but any number cannot be divided by 0। नंबर 1 भी होगा तो उसको भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0.5 भी होगा तो उसको भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि हम, जिसको हम आमतौर पे इन्फिनिटी कहते हैं, तो वो असल में ये है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कि कोई उसका आंसर नहीं है। इन्फिनिटी का भी कोई मतलब नहीं है ना कि कितना होगा, भाई इन्फिनिटी का क्या मतलब है। तो इस तरह इसका भी मतलब है कि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर में करें, किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 0 कर दें, तो आपको मैथमेटिकल एरर दे देगा, वो कोई आंसर नहीं देगा।
तो याद रखिए 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 होगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 होगा, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो एक हमारे पास 0 आ गया, ये हमने पहले वाले को इक्वल टू 0 रखा था। अब दूसरे वाले को 0 रखते हैं और x माइनस 2 इक्वल टू 0, so x will be equal to 0 plus 2, so x is equal to 2। ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरा भी यही है, ये x माइनस 2 था, तीसरा भी x माइनस 2 है, तो उसका भी यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए कि 3 फैक्टर्स थे, x इक्वल टू 0 एंड 2। तो तीसरा भी 2 है, तो 2 को रिपीट नहीं करते हम। अगर सेट बना रहे हैं, अगर सेट में लिख रहे हैं तो सिर्फ 0 और 2 लिखेंगे, और अगर सेट में नहीं लिख रहे हैं, हम इस तरह लिख रहे हैं आम फॉर्म में, तो वो हम तीनों ही लिख देंगे, 0 है, 2 है, फिर 2 है, तीनों आंसर आ जाए। लेकिन हम इसका सेट बना रहे हैं, जो सोल्यूशन सेट शायद आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, तो फिर हम इसमें रिपीट नहीं करते कोई नंबर, 2 दफा ही लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। सेट में नंबर रिपीट नहीं हुआ करता, ये याद रखिए। सेट में अगर सेट की फॉर्म में आपने आंसर लिखना है तो सिर्फ 0 और 2 लिखेंगे। अगर सेट के बगैर इस तरह लिख रहे हैं तो फिर आप इस तरह 3, 4, 10 दफा भी आएगा 2 तो 10 दफा ही लिख दें आप। लेकिन अगर सेट में लिख रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, एक नंबर एक दफा ही आएगा, एक नंबर एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आया करता सेट में। सर अगर माइनस हो फिर तो आएगा ना? हाँ, -2 अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है बेटा। -2 अलग है, 2 अलग है, 0.2 अलग है, 2 अलग है, 1/2 अलग है, 2/1 अलग है, 3/4 अलग है, 4/3 अलग है, वो अलग अलग नंबर है। प्लस वाले नंबर अलग हैं, माइनस वाले नंबर अलग हैं, दे आर डिफरेंट नंबर्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने इनको करना है। अब हम चलते हैं जरा फ्रैक्शंस की तरफ, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करेंगे। कितना टाइम रह गया इस सेशन का? 1 मिनट रह गया। चलो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज में हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे भाई, ज्यादा वो वाले नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन या 2 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे और सिंपल वाले पावर 1 वाले करेंगे।